was the basics of the pH. Okay, what is pH, and we'll discuss about it. For that, I've prepared a presentation. Okay, so first we will have to know what is pH. As we know, pH is it is just the measurement of the hydrogen ion concentration, right? It is all been defined here. That is, it is the hydrogen ion concentration, and solution which have the higher hydrogen ion concentration, they are acidic. We know that what are acids, that is Bronsted-Lowry concept, say that the acids which gives proton in aqueous medium in solution state, है ना, H plus ion. So how easily they liberate H plus ion, or they are the strong acid. That is the parameter of strong and weak. But what is the parameter of this, the pH, acidity and basicity? That is the pH, right? So hydrogen ion concentration, right? The concentration का measurement है. So that is solution which will have the low hydrogen ion concentration, that they are basic, and their pH will be high, है ना, that we know. आगे हमने discuss किया हुआ है. That is the pH range is between 0 to 14, right? So 0 to 7 are acids, and beyond 7 they are base, है ना. So when the pH is, hydrogen ion concentration is low, pH is high. And because yes, pH is a negative logarithm of H plus ion concentration, right? So that is the higher the concentration, low the pH, lower the concentration, higher is the pH. That is all the basics that we know. That is, the one example is given over here. That is, if the concentration is in terms of molarity, it is 10 to the power minus 6 m, then the pH is 6, you know, because it is negative logarithm of H plus ion concentration, right? So okay, so this is all has been written here about the pH, and this is the pH equation, right? This is the pH equation, and this term, this was first given by it is a German word. It has been derived from a German word, that is Panpontes, and which means power combined with hydrogen, right? So this is and the elemental okay. So because the elemental symbol of hydrogen is H, so therefore this is pH. P is corresponds to the power of the P power, and the H corresponds to hydrogen, and H is the symbol, so it is written in capital caption. Okay, so this is the pH, and okay, pH scale, right? This is 1 to 14 है, 0 to 14 है. So 7, this is the neutral, जहाँ पर कि हम कहते हैं वाटर, है ना, दैट इज द फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि वाटर भी अगर इसमें इम्प्योरिटीज हैं तो पीएच वेरी करती है, एल्कलाइन हो जाता है और एसिडिक हो जाएगा, राइट? सो द फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर हैज द न्यूट्रल पीएच, दैट इज 7, and the below 7 it is acid, below 7 it is acidic, and above 7 it is basic. And there are some these are the common uses, daily use के जो substances हैं, right? उनकी pH, जैसे blood की pH we know that is between 7.4 to 7.8, milk pH, egg yolks, these are मतलब that these are acidic, है ना? gastric juice, है ना, HCl होता है ना gastric juice में, so the pH is 1, around 1. Lemon juice is acidic, and these are the basic. This is the milk of magnesia, that is the acidity होती है, we take this, that is the magnesium hydroxide. So when acidity is there, that is the pH acid का formation ज़्यादा हो रहा है, so the alkaline solution को लिया जाता है ना, to neutralize it, right? इसी तरह अमोनिया solution है, ये जो आजकल ब्लीच का यूज हो रहा है ना, जो हम लोग कोविड टाइम में जो सैनिटाइजेशन करते हैं तो उसमें सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट यूज होता है, दे इसका भी जो पीएच है जेम्स को मारने के लिए यूजली अल्कलाइन सोल्यूशन है, जितने भी डिसइंफेक्टेंट है, ब्लीच है, ब्लीच इज आल्सो व्हाट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, राइट? तो दीज आर द सम नेचुरली अकरिंग. ओके, अब वाटर की बात जब करें तो वाटर हम कहते हैं वाटर न्यूट्रल है, बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन एंड द OH माइनस, राइट? ओके, अब इसमें जब H प्लस बढ़ जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, OH माइनस बढ़ जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा, राइट? हम एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे, इसलिए एक्वस सोल्यूशन है. once aqueous solution is there, that is it is the medium is water, right? So there is an equilibrium with this, and water in water the neutral solution है, and if the concentration of hydrogen ion is equal to the concentration of the hydroxide ion, right? In all acidic solution contain more hydrogen ion than the hydroxide ion, and in alkaline solution contains more hydroxide ion than H plus ion. That is what we can say. अब pH के लिए हम लोग लिटमस पेपर से
से कलर से डिस्टिंग्विश करते हैं, लेकिन वेरियस काइंड ऑफ इसके पैरामीटर्स भी बने हैं। इफ दिस कलर इज ऑब्टेन्ड, ये होगी, लेकिन ये 10 इज दिस मच रेंज, है ना, तो ये एक्यूरेसी नहीं बताता है। 11 की इतनी रेंज है, क्योंकि ये ब्लू कलर में देखो थोड़े डिफरेंस है, डार्कर होते जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द रेंज ऑफ द लिटमस पेपर पे जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। पीएच दैट इज द वाटर, वो की ग्रीन है, इधर मूव कर रहे हैं तो ब्लू हो रहा है एल्कलाइन, एंड इधर मूव कर रहे हैं तो रेड होता है ना। जैसे भी जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं वेदर द गैस विच इज बीइंग लिबरेटेड इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, तो हम टेस्ट ट्यूब के टिप पर क्या रखते हैं, दैट इज द मॉइस्ट लिटमस पेपर, है ना। दैट मॉइस्ट लिटमस पेपर absorbs the vapors, the vapors which are being evolved from the reaction from the test tube, उसको absorb करता है। तो if it turns, the blue turns red, so we said the gas is acidic. If the red litmus turns blue, then we say the gas which is being evolving is basic, right? So this is the litmus paper through which the indication हो सकता है, it just indicate that it is acidic or basic, but actual pH के लिए it is not a good indicator, right? Now, अब हमको क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच, राइट। तो इफ हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन है एसिड का, इफ वी आर डाइल्यूटिंग दैट सोल्यूशन, क्योंकि इफ द सोल्यूशन में देयर इज एक फिक्स कंसंट्रेशन का हमारे पास सोल्यूशन है, वी हैव ए सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है, इट हैज ए कंसंट्रेशन, उसका वी नो इट्स कंसंट्रेशन, उसका डाइल्यूशन किया बाय एडिंग, व्हाट इज डाइल्यूशन, that is increase the proportion of the solvent, है ना। there is a solution contains solvent in the solute. अगर HCl का हम water में solution बनाए, that is the solute is the HCl and the solvent is water, that is what we all know. So when more water will be added, more solvent will be is added, the solution becomes dilute, right? So यहाँ चूंकि pH के reference में बात हो रही है, so यहाँ हमने water को treat किया, when the proportion of the solvent the solution becomes dilute, right? So this is all about the what is dilution. Now अब now so अब हम क्योंकि एसिड और बेस के pH के का वेरिएशन हमको पढ़ना है, that is the variation in pH of the acid and base upon dilution. So एसिड सॉल्यूशन एक लोन स्ट्रेंथ का है, उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन फिक्स है, राइट। सो एसिडिक सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करेंगे तो व्हाट इज कंसंट्रेशन है, और उसमें जब हम डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल डिक्रीज, राइट। मोलैरिटी के टर्म्स में है ना, ग्राम पर मिलीलीटर अगर बोले, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द कंसंट्रेशन, क्योंकि द वॉल्यूम of the solvent is increasing, therefore its concentration will decrease. So pH is the measurement of what? Hydrogen ion concentration. So when the concentration of H plus ion will decrease, acid का क्या होगा, weak हो रहा है, that means the pH will increase, right? When the pH is more towards lower side, it is more acidic, that we say. When the pH is more towards 7, it is less acidic, right? So the hydrogen ion concentration decreases when the dilution increases. So the pH scale, that is moves towards 7. That is, it increases towards 7, right? Okay. Now, or we know it is a negative logarithm of the hydrogen ion concentration. तो इसलिए अगर हम उसको pH को हम 1 कब बढ़ा सकते हैं, जब उसमें 10-fold डाइल्यूशन करें, है ना, 10 की पावर -10 होगा तो वो pH हमारी 1 डिग्री 1 बढ़ जाएगी, है ना। जैसे 1 मिलीमीटर हमारे पास एसिड है और उसमें 9 मिलीमीटर हमने वाटर डाल दिया, तो वो डाइल्यूशन हो गया 10%, राइट। तो उस 10% डाइल्यूशन में pH 1 बढ़ जाएगी, कितना, 1, राइट, क्योंकि लॉगरिथम टर्म्स में है। सिमिलरली एल्कली का pH में क्या है, व्हेन वी आर डाइल्यूटिंग एन एल्कली में एल्कलाइन है क्योंकि इसमें OH माइनस है, राइट। सो अब कंसंट्रेशन है, अब इसमें इट इज एल्कली बिकॉज इसमें OH माइनस आयन की वजह से एल्कलाइन नेचर दे रहा है। सो व्हेन इट इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइन डिक्रीजेस, सो द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिक्रीजेस, दैट मींस एल्कलिटी इसकी कम हो रही है, दैट मींस इसका pH डिक्रीज होगा, क्योंकि मोर टुवर्ड्स 7 है ना, 7 to 14 होता है ना, तो
राइट। तो 7 के इधर 14 से लोअर जाएगा, पीएच डिक्रीज, दैट इज एल्कलिनिटी, OH आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, राइट। और व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, H आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोअर से अबव करें ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज हो रहा है, लोअर टू अबव, राइट। सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट, जल्दी तुम लोग जानते भी होंगे। तो सिमिलरली ये यहाँ जानना है कि when alkali is diluted with water, concentration of the OH ion increases, therefore the pH of the alkali will fall towards 7, है ना। यहाँ पर increase towards 7, here it will decrease towards 7, right? Okay, so okay, ये तो हो गया था हमारा डाइल्यूट, हाँ ये अलग अलग हमने दिया था, उसी को अलग से लिखा हुआ है हमने, सेम चीज, दैट इज डाइल्यूटिंग एन एल्कली एंड डाइल्यूटिंग एन एसिड। ओके, ठीक है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट है जो वी विल परफॉर्म इट। इसके बाद एक चीज और ले लेते हैं जो कि इसमें पार्ट में है, हाँ इसको हमने टेबल ऑफ फॉर्म में बनाया हुआ है कि दैट इज हमारे पास, इसको हम परफॉर्म करेंगे 0.1 ml ऑफ HCl है, इसका 10% हमने डाइल्यूशन किया, पीएच इसकी 1 थी, लेकिन आफ्टर 10% डाइल्यूशन इसकी पीएच 2 हो गई, सिमिलरली पीएच इंक्रीज हुई, है ना। और जब NaOH था, NaOH इज ए बेस, इट इज एल्कली, इसका 0.1 m स्ट्रेंथ का लिया है, पीएच इसकी 13 है, एंड अपॉन डाइल्यूशन ये 12 हो गई, दैट इज इज डिक्रीजिंग, है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दिस इज अ, जो कि हम लोग अभी इसको निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली उससे, वर्चुअल लैब से, ठीक है। हाउ पीएच इज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी, एक तो फिर वो आपको बोला लिटमस पेपर, लेकिन लिटमस पेपर एक और नहीं होता है, लेकिन पीएच मीटर होते हैं लेबोरेटरी में जो कि इसको मेजर करते हैं। पीएच मीटर का हमने डायग्राम दिया हुआ है कि पीएच मीटर से इसको मेजर किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इतना इसमें नहीं जाना है, लेकिन आप वर्चुअल लैब से हमको कैसे करना है दैट वी हैव टू नो। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसमें एक और है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, दोनों इसमें है। तो कॉमन आयन इफेक्ट है ना, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। कॉमन आयन मतलब कि एक कोई भी सॉल्ट है, कोई भी हमारा कंपाउंड है, उसमें नेगेटिव आयन होगा और एक पॉजिटिव आयन होगा। जैसे एसिटिक एसिड, इट कंटेन्स एसिटेट आयन CH3CO माइनस एंड OH माइनस, हमने ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो कॉमन आयन इफेक्ट दैट इज, हाँ इसमें ये देख ले, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि इसमें हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, ओके पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो एसिडिक एसिड है, राइट, दिस इज ए ऑर्गेनिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, राइट, है ना, और इनऑर्गेनिक में वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं। तो दिस इज अ वीक एसिड, एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड का कुछ सोल्यूशन में डिसोसिएट करेगा इनटू आयन, इट इज एन एसिड बिकॉज इट गिव्स H+ आयन। ओके, अब इसमें एक कॉमन आयन दैट इज, अब आप लोग को कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड की कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, है ना। एसिड जब डिसोसिएट कर रहा है, ये जो नेगेटिव आयन बन रहा है, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, राइट। व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एसिड, दैट वी नो। बेस को यूजुअली हम जब लुइस एसिड और बेस, की लुइस कंसेप्ट से जब डिफाइन करते हैं, तो लुइस एसिड क्या कहते हैं, लोन पेयर डोनर, and Lewis acids are lone pair acceptor, right? So here it is carrying a negative charge, it is a conjugate base, है ना। और इसका जब हम सॉल्ट बना देंगे तो क्या कहलाएगा, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस दैट इज CH3CONA, ये तो CH3COH है और इसमें कॉन्जुगेट ये है CH3CONA। तो इसमें अगर ये ऐड किया गया, मतलब वी आर एडिंग ए कॉमन आयन, विच कॉमन आयन, दैट इज द एसीटेट कॉमन आयन, हाइड्रोजन H+ इज नॉट कॉमन, only the acetate ion is common. So when the common ion effect, जब जब common ion का salt, conjugate base का salt इसमें add किया, so common ion का concentration बढ़ जाएगा, that increases the concentration of the common ion, and उस due to that hydrogen ion का concentration नहीं बढ़ा है, उतना ही रहा, so the reaction actually, हाँ एक चीज और है, this is a strong electrolyte, this is a weak electrolyte, तो इसका ionization faster होगा, इसका फिर ये reverse हो जाएगी reaction, that is a reaction is driven to the left की तरफ हो जाती है बैकवर्ड, और इसलिए H+ आयन इससे कंबाइन करके फिर एसीटेट आयन बना देते हैं, तो H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, therefore pH increases. This is the effect of common ion on the weak acid. वीक एसिड में अगर एक कॉन्जुगेट बेस को मिला दिया जाए, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो इट्स pH डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, सिमिलरली इसी तरह एसिड का लिए वीक बेस है ना, अमोनिया सोल्यूशन दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस, ये डिसोसिएट होकर अमोनियम आयन और ये OH- आयन देता है,
तो इफ दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से OH माइनस के आए, इट इज ए बेस, इट गिव्स OH आयन, तो ये बेस है। अब ये NH प्लस, इट इज ए लुईस एसिड, राइट, इट इज ए लोन पेयर एक्सेप्टर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये इससे फॉर्म हुआ है, इट इज अ लुईस एसिड, एसिड है ये। तो ये इसको, इसका हम सॉल्ट लेंगे, इफ ए सॉल्ट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड, इसका सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका सॉल्ट क्या होगा NH4Cl, इसमें नेगेटिव आयन के साथ ये सॉल्ट बनाएगा। तो OH माइनस आयन को ना लेकर क्या लिया गया, अनदर सॉल्ट that contains a different negative ion, that is ammonium chloride. So what will happen, same thing, due to अब यहाँ पर by the addition of salt of conjugate acid, the concentration of the common ion increases, that is the ammonium chloride. It is a strong electrolyte, this is a weak electrolyte. So the reaction is driven to the left here in this case also. So reaction is driven to the left, that means no, there is no more hydroxide, the concentration of the hydroxide ion decreases. The concentration of the hydroxide ion decreases, therefore pH decreases. Okay, so what is the effect of common ion on the pH of the weak base? That is the pH decreases. And what is the effect of common ion on the weak acid? That is the pH increases. Okay, these all the experiment which we will perform. इसी तरह अब अभी तक आप लोगों ने जब करते होंगे ना, तो कैलकुलेशन करके हम लोग pH को निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं ना pH बेस, जिसमें कि हम लोग एंडरसन इक्वेशन को लगाते हैं ना। सो ये एक कैलकुलेटिव वे है जिसको कि कैलकुलेट हम लोग करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में इसमें डायरेक्ट रिजल्ट है, दैट इज how we will find it out. Okay, अब यूजेस ऑफ pH डेली लाइफ में हर जगह, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें हर चीज मेंटेन रखनी है, ऑल द फिजिकल कंडीशंस हैव टू बी मेंटेन, देयरफॉर pH मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, सो नेचुरल प्रोसेसेस में भी देयर इज अ रोल ऑफ pH. Physical parameter that has. Okay, so मेरा ये इंटरफेस दिख रहा है ना निशा बच्चों? हाँ मैम दिख रहा है। ओके, सो कल हम लोगों ने एक डाउनलोड करने का और इसको इंस्टॉल करने का वीडियो एंड द PDF आप लोगों को शेयर किया था। हाँ, प्रॉब्लम हुई होगी लोगों को, क्योंकि ये मोबाइल में एंड्रॉयड में आज हम ग्रुप ओपन करेंगे, उसमें आप लोग डिस्कस कीजिएगा। अभी इसके बाद भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ रिसोर्स पर्सन हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम उसको क्योंकि वो कैंप कलेक्टिव वर्चुअल लैब उस पर जाएंगे, उसको हम उसका विंडो एप्लीकेशन या मैक व्यू है उसको हम डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हमको एक जावा वर्जन भी उसको करना, इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसको करने के बाद व्हेन वी ओपन द जिप फाइल, तो हमारा ये इंटरफेस ओपन होता है, राइट। तो वी विल ट्राई इट लेटर, और आप लोग देखिएगा, कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उनके लिए बहुत आसान होगा। ओके, सो दिस इज द कैंप कलेक्टिव इंटरफेस, है ना। ये हमारी एक वर्क बेंच है ना, जैसे लैब में क्या होती है, हमारे बेंच होती है, वी वर्क ऑन द बेंच, राइट। और वहाँ पर साइड पे हमारे पास केमिकल्स होते हैं, हमारे पास स्टॉक रूम होता है जहाँ पर कि सॉल्यूशंस होते हैं। सिमिलरली हियर आल्सो, एंड दिस इज यहाँ पर एक जहाँ इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट। यहाँ पर जो हम पैरामीटर करेंगे, यहाँ चेंजेस होंगे। दिस इज अ pH मीटर, यहाँ पर pH मीटर है जो इंडिकेट करेगा जब pH वैल्यू होगी, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन है, दैट इज द सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है ना। और दिस इज द स्टॉक रूम एक्सप्लोरर, यहाँ भी फाइल में डिफरेंट पार्ट हैं। अभी रोज हम लोग करेंगे तो आप लोग सीखेंगे कहाँ कहाँ पर टूल्स है, वेरियस यहाँ एपरेटस है, राइट। और यहाँ पर हम 2-3 वर्क बेंच भी ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 वर्क बेंच ओपन की हुई है, ये हमने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। एनीवे, आई विल ओपन अनदर वर्क बेंच। तो दिस इज ए वर्क बेंच, राइट। So here what I have to perform, that is the effect of dilution on the pH of the acid. So यहाँ पर हमारा ये solutions है, इरिडियम solutions हैं। This is a यहाँ different, जैसे distilled water है, stock solutions है, strong acid है, weak acids है, conjugate acid है, strong bases है, right? So हम यहाँ strong acid पर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक किया, यहाँ पर strong acids की हमको लिस्ट मिल गई। तो हम इसको लेते हैं, चलो 0.1
MnCl के स्ट्रेंथ को हमने डबल क्लिक किया तो देखो बेंच पर हमारे एसिड आ गया। अब एसिड आया, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखो पीएच आ गया, इसका पीएच 1 है। अब ये हमको यहाँ भी शो कर दिया कि दैट इज इसका यूनिट, राइट। ओके, तो ये एज सुन एज वर्क बेंच पे हमने एक अपना केमिकल रखा, उसके पैरामीटर्स को यहाँ पर रीड हो गए। ओके, नाउ आई विल नीड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते ही क्लोज हो गया। नाउ आई नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस, हम दोनों को करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में हम NaOH कौन सा ले लें, ओके 0.01 NaOH ले लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा 0.1 NaOH आ गया। दिस इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ अब हमको डाइल्यूशन करना, आई नीड अ डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर के लिए ये करेंगे तो यहाँ पर ये डिस्टिल वाटर का टर्म है, राइट। ओके, नाउ अब मेजर करना है। मेजर करने के लिए यहाँ पर टूल्स है, यहाँ पर देखो बीकर्स हैं, फ्लास्क है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, पिपेट्स है, वॉल्यूमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट पेस्ट भी कर सकते हैं, या हम उसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसको एडमिट कर देंगे, हाँ ओके। तो यहाँ पर हमारे 2 हो गए, दैट इज द इन विच वी विल मेजर। नाउ अब चूंकि इसको हम 2 ml ले, दैट इज द वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज मेड अप टू 20 ml, है ना। 20 ml तक वॉल्यूम को बना दिया जाएगा। द 10% डाइल्यूशन कर रहे हैं, 2 में हम 18 डाल रहे हैं। ओके, जैसे उसमें हमने जो टेबल बनाई थी उसमें 1 में 10 करके हमने डिफाइन किया था, 1 में 9 करके, और यहाँ पर हम 2 ml में 2 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी टेकन। नाउ टू मेक द सॉल्यूशन टू डाइल्यूशन के लिए हमको एक हम ब्लैंक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, दैट इज एर्लेमेयर फ्लास्क, राइट। दैट इज ब्लैंक फ्लास्क, राइट। आई विल नीड 2 फ्लास्क, क्योंकि एक एसिड के लिए चाहिए और एक, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम ले भी सकते हैं, राइट। सो ये एसिड के लिए लिया, बेस के लिए। अब इसका पीएच देखो, ये क्या हो गया, हाँ दिस इज एसिड। हमने यहाँ क्लिक किया तो देखो पीएच मीटर पे पीएच दिख रहा है, और दिस इज बेस, इसको हमने क्लिक किया तो इसकी पीएच देखो 13 है। ओके, तो दिस इज 0.1 MnOH, pH is 13, that is the basic, and this is 0.1 HCl, its pH 1 है। Okay, so this is all being shown in, and now up dilution. So for dilution, okay, हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर में 2 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, तो वेरी इजी टू हैंडल इट। इसको बस मूव ड्रैग करना होता है, ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाने पर क्या होता है, यहाँ एक ग्रीन दिखेगा डॉट, ग्रीन डॉट दिखेगा, दैट मीन्स आवर एडजस्टमेंट इज द परफेक्ट। तो आफ्टर दैट हम उसको छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद ये पोर सिंबल अपने से आ जाता है, राइट। नाउ आई हैव टू पोर हाउ मच, 2 ml ऑफ दिस। तो देयर हियर, यहाँ पर एक मेनू बार है, यहाँ पर द लोअर साइड I will type 2. Okay, now the pour. So the 2 ml is been poured in the graduated cylinder. अब इसको वहीं पर ले जाएंगे, as soon as it is placed here, यहाँ से ये सिंबल हट गया, so 2 ml यहाँ पर है। Okay, now अब 18 ml of water has to be taken, है ना। इसको हम लोग लेबल भी कर सकते हैं, जैसे लैब में भी वी वर्क ना, वी लेबल। अब इसको रीनेम का भी ऑप्शन है, वी कैन रीनेम किया, ये चूंकि हमको बेस के लिए यूज करना है, वी कैन लेबल इट, ओके, वी कैन लेबल इट एज कैपिटल B, है ना, ये भी हो गया। और दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द बेस एसिड, सो आई एम लेबलिंग इट एज कैपिटल A, राइट। सो ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करने में ठीक रहेगा। नाउ अब डिस्टिल वाटर, इसमें 18 ml हमको पोर करना होगा। हाउ मच, इसको भी जैसे ही ग्रीन यहाँ पर आया, आई विल लीव इट। ओके ओके, सो 18, हाउ मच, 18 ml वाटर। देखो यहाँ पर तुरंत वेरिएशन दिखाता है, यहाँ पर पहले ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, अब यहाँ पर ये हो गया, राइट। 18 ml ऑफ वाटर हुआ। अब इसको हम इसको वापस कर दिए। नाउ आई विल पोर दिस इनटू दिस, राइट। ये हमको इसमें पूरा डालना है, इसमें मेजर नहीं करना है। सो अब यहाँ टूल्स पे देखो, जब जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर बार है। ट्रांसफर बार में हमको ये टोटल ट्रांसफर करना है, तो हम रियलिस्टिक ट्रांसफर पे कर देंगे। रियलिस्टिक ट्रांसफर किया, ये पूरा इसमें ट्रांसफर हो गया है ना, हो गया ना, 1 मिनट हो गया।
ओके, अब इसका हमने डाइल्यूशन किया था, ये हमने ये लिया था, इसका पीएच देखो 1 है। आई ये क्या होगा, 1 मिनट 2 होना चाहिए ना, हमने एल के लिए एक मिनट एल के लिए ले लिया था 1 मिनट। ओके, ये बेस वाला आ गया था, डजेंट मैटर, एनीवे एनीवे आई विल डू इट विद दिस। इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि लैब में हम जो ध्यान रखते हैं ना। ओके, हटा देते हैं इसको, एक मिनट, रिमूव, है ना, वो एल्कली था, हम एसिड से पहले परफॉर्म करते हैं, है ना। ब्लैंक, ग्रेजुएटेड सिलेंडर 10 ml, रिमूव। ओके, तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर 10 ml, दिस इज ए ब्लैंक फ्लास्क, ठीक है। इस पे हम ले लेते हैं हाउ मच, इसमें हमको करना पड़ेगा ट्रांसफर, दैट इज प्रिसाइज ट्रांसफर, एंड 18 ml, 18 ml और, ठीक है, और हो गया, चलो ये इधर जाएगा। नाउ HCl, HCl जिसकी pH 1 है, यहाँ पर प्रिसाइज ट्रांसफर दैट इज 2 ml, ठीक है, और और हो गया ना, हाँ, और ओके, नाउ दिस हैज टू बी ट्रांसफर दिस, इसमें हम जाएंगे दैट इज रियलिस्टिक ट्रांसफर, है ना, रियलिस्टिक ट्रांसफर 4, है ना, 4 हुआ ना, हाँ, ठीक है, राइट। सो पीएच हैज रेज्ड, है ना, लेस एल्कलाइन हो गया, पीएच रेज हुई ना, राइट, वॉल्यूम में थोड़ा वो हुआ तो पीएच हैज रेज्ड। ओके, तो इस तरह से हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं। अपॉन डाइल्यूशन द पीएच ऑफ द एसिड इज रेज्ड। इसी तरह बेस में क्या होगा, द पीएच विल डिक्रीज, पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। अब इसमें दिस इज द बेस, दिस इज अ बेस, और बेस को ऐसे परफॉर्म करेंगे तो पीएच से डायरेक्ट, यहाँ पर हम एक ब्लैंक फ्लास्क लेते हैं, एल्डेनमेयर ब्लैंक फ्लास्क विल बी टेकन हियर, ठीक है, इसमें हम 2 ml डालेंगे, सेम चीज, दैट इज यहाँ पर फिर हमको करना पड़ेगा प्रिसाइज ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पर हमको कैलकुलेटेड अमाउंट लेनी है, नॉट द एल अमाउंट, दैट इज 2 ml, और 2 ml 4, राइट। नाउ आई विल रिमूव दिस, 2 ml दिख रहा है ना इस पे, है ना, वी कैन सी इट, ओके। नाउ द वाटर, हाउ मच, 18 ml, और देखो यहाँ पर आ गया पानी, है ना, दिखता है यहाँ पर, डिस्टिल वाटर। नाउ दिस इज, इसका पीएच देखो, दिस इज एल्कली, इसका पीएच हमको 13 दिख रहा है पीएच मीटर में, है ना, 13 दिख रहा है। अब इसको अब यहाँ पर रियलिस्टिक ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमको जो 2 ml है, द होल हैज टू बी ट्रांसफर्ड, सो वी विल गो टू रियलिस्टिक ट्रांसफर, हाँ, रियलिस्टिक ट्रांसफर हो गया, देन द प्रेस द पोर बटन, ओके, सो रिमूव दिस, ओ सॉरी, 2 बार दब गया क्या मेरा, पीएच हैज डिक्रीज्ड, है ना, पहले पीएच कितनी थी 13, नाउ पीएच हैज डिक्रीज, लाइक दिस कैलकुलेट करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट जो हम डाल रहे हैं उसको कैलकुलेट करना होता है, अमाउंट जो डालना है उसको कैलकुलेट, उसको जो हम लिख रहे हैं उसको हम लोग साइड बाई साइड लिखते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, और उसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो दिस एक वर्क रेंज है जिसमें कि एसिड अपना अपने डिफरेंट डिफरेंट हम एसिड्स ले सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड की भी कहाँ यहाँ काफ़ी रेंज है, वी कैन टेक, आपने HCl लिया है तो मेस्ट्रोसोफोर लेंगे, उसका अब हम उसका डाइल्यूशन या 10% किया है तो उसका डाइल्यूशन और ज़्यादा 20% करके और इस करके वी कैन find the pH, we can find the pH of the diluted solutions, ठीक है ना, ओके,
एक मिनट रुको, इसको ये पैक कर देंगे, है ना। ओके, एक मिनट रुको। ओके, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको कि आगे भी और होंगे, कि दैट इज द चेंज ऑफ पीएच, जो कि हम इस वर्क बेंच पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, और पीएच को मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पीएच मीटर से, है ना। हम इसको एक बार और फिर से करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है, जो हमने कॉमन आइन इफेक्ट वाला लिया था, दैट आई विल दूसरी वर्क बेंच लेकर उस पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक मिनट और रुको, ये बार बार मुझे एडमिट वाले कैंडिडेट दिख रहे हैं तो उससे मेरा छिप जा रहा है। ट्रांसफर बार, प्रिसाइज ट्रांसफर 2, ट्रांसफर बार रियलिस्टिक ट्रांसफर। ओके, तो द पीएच, ये जो हमारा NaOH है, the pH of this NaOH solution is 13 pH meter में देखो, it is between 12 and 14, right, and the pH of this solution after dilution is varied, है ना, it is near about 12, that is 11.55. Okay, so there is decrease in pH of alkali on dilution and the increase in pH of base upon dilution, right. ओके, अब न्यू वर्क बेंच को हम ले लेते हैं। न्यू वर्क बेंच, दिस इज द वर्क बेंच वेयर आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, दैट इज द effect of pH upon dilution of the strong acid in the strong. The second है, that is weak acid and weak base effect of common ion, है ना, effect of common ion on the strength of weak acid and weak base. 1 minute. Now, ओके, तो इसमें क्या है, अब हम खोल, आई विल ओपन द वर्क बेंच से so one weak acid has been taken and the one weak base has been taken on the place of the workbench, right. Now what we have to study is the effect of dilution, effect of common ion effect by the dilution. एक मिनट, बार बार एडमिट होने का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से करना है हमको क्या, कॉन्जुगेट एसिड्स, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, जो कि हमने बेस क्या लिया है, अमोनिया, तो हम यहाँ पर नाउ आई विल चूज द कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक एसिड लिया है तो आई विल टेक सोडियम एसिटेट। अब इसमें चूंकि हमको ऐड करना है, इसका इसमें एडिशन है, तो बी कर लेंगे, विल टेक एडिशन हम किस में करेंगे, बी करेंगे, राइट। Got it? So बस अब बीकर में दोनों का हम लोग दैट इज अमाउंट हम लोग अब ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लेते हैं, क्योंकि हाँ लिया है, 5 ml
में 10 ml लेते हैं क्योंकि इतना amount इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हालांकि आई नीड 4 ऑफ देम, हर एक पे अलग अलग लेना चाहिए, है ना, क्योंकि लैब में तो वी वॉश इट, ड्राई इट, देन यूज इट, राइट। ले सकते हैं, ओके। हालांकि अब इसमें हम एसिटिक एसिड दैट इज व्हिच इज अ वीक बेस, एसिटिक एसिड क्या है, दीप्ति दी आवाज नहीं आ रही है। रियली हेलो, हाँ अब आ रही है। अभी तुरंत हुआ था, हाँ अभी हुआ था। क्या हुआ, कोई हैंड रेज किया है हाँ सम आपके लिए नरसिंह क्या? कुमार, वो ऐसे ही कर दिया होगा। आवाज के लिए क्या होगा सब? हाँ मैम अब आवाज नहीं आ रही थी मैम। अच्छा अच्छा, हो गया ना। हाँ हाँ हम्म, एक मिनट रुको, हमने हालांकि ग्रेजुएटेड ना लेकर हम यहाँ बीकर भी ले सकते हैं, नहीं? है ना, हाँ बीकर ले लो ज्यादा अच्छा है। हालांकि अब इसका देखो पीएच हम मेजर करते हैं, ये है और दिस इज द 0.1 ml, इसका ये आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है। नाउ हाँ नाउ इट इज ऑन। नाउ इट इज क्लियर, ओके। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, पहले इसको यही प्लेस करती है, पहले सबकी पीएच देख लेते हैं, है ना। अमोनिया है, क्लियर है आवाज? हाँ ओके, दिस इज अमोनिया, इसका पीएच हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्जुगेट अमोनियम क्लोराइड है और ये अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो सबका पीएच को हम यहाँ मार्क कर सकते हैं, राइट। नाउ अब एसिटिक एसिड से अब इसको हम लोग एडिशन करेंगे। एसिटिक एसिड इसमें से हम कितना प्रिसाइज ट्रांसफर पे जाएंगे, क्योंकि हमको एक अपनी अमाउंट हम टाइप करेंगे, से आई विल राइट हियर 5 ml, 5 ml हम लिख देते हैं, 5 ml सही नहीं है क्या, 5 है ना। देखो हमने 5 के बाद ml लिख रहे थे तो वो रेड आ गया था यहाँ पर, है ना। खाली यहाँ पर खाली लिखना है हाउ मच, क्योंकि इफ इट इज ए लिक्विड ये ml में इसको ट्रांसफर करेगा, है ना। सो 5 ट्रांसफर किया हमने, दिस इज ए वीक एसिड, है ना। अब इसको भी हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसका पीएच हमको यहाँ दिख रहा है पीएच मीटर पर, राइट। तो वीक एसिड द कंसंट्रेशन, चाहे हमने वॉल्यूम कितना भी लिया है, कंसंट्रेशन इज सेम एंड द पीएच इज दिस। अब इसमें आप डायरेक्ट करते हैं इसमें, अब ये वीक एसिड, अब इसका लेंगे ये, दिस इज सोडियम एसीटेट, कॉमन आयन ऐड करेंगे, दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, है ना। इसका भी ओके। सो here also I will write 5, say it has been transferred for pH has risen, got it. It was 2, now it is 4, it is 5, right. So the 5 in the 5 ml of the weak acid, that is the acetic acid, when the salt of its conjugate base, that is a common ion, acetate ion, has of the weak acid increases, right. So it is clear कि जितना 5 में हमने 5 मिलाया तो pH इतनी होगी, that we all note down. Okay, so very simple experiment. Similarly, this is ammonia solution which is a weak base, so
सेम चीज़ यहाँ पर क्योंकि हमने प्रिसाइज किया हुआ है तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। 5 ml यहाँ डाल दिया हमने। ओके, देयर वाज नो नीड ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, है ना उसमें। एनीवे इतना वर्क बेंच को भी हमको, अब इसका पीएच हम देखेंगे। अमोनिया है, इसकी पीएच इट इज बेसिक 12 है। नाउ सो अब इसमें अमोनियम क्लोराइड, दैट इज द सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड, है ना। अब यहाँ भी आई राइट इट 5, पीएच को नोट कर लिया, उसका पीएच 13 था। नाउ आप इट 4 किया। नाउ आफ्टर एडिशन the pH of the weak acid is decreased. Got it? क्योंकि the concentration of the OH minus is being decreasing by the introduction of the common ion, by the addition of the common ion, which is ammonium. यहाँ पर common ion क्या है? Ammonium ion. So where the pH is being decreased, है ना। इस pH को हम नोट कर सकते हैं ना, क्योंकि लेबोरेटरी में हमको नोट करना होता है, रीडिंग निकालनी होती है। ये तो थ्योरी है, हम जानते हैं कि वैसे और वैसे इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में पीएच मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हम पीएच मीटर से निकालते हैं, उसमें इसमें सोल्यूशन को डिजायरेबल को डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, फिर वो डिजिटाइज्ड होता है, उसमें हमको पीएच दिख जाती है डायरेक्ट। लेकिन दिस इज द वर्चुअल लैब इंटरफेस वेयर द वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट and observe the readings and note it down on our notebooks, राइट। ये सब पैरामीटर्स देखो दिए हैं हमने, जो ये बना दिया ना। अब इसके अब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इसके पैरामीटर्स यहाँ दिख रहे हैं कि इसमें कितने अमोनियम आयन है, हाइड्रोक्साइड है ना। सिमिलरली आई एम क्लिकिंग हियर, दिस पैरामीटर्स विल चेंज। ओके, यहाँ क्लिक किया, दिस पैरामीटर्स आए, इसकी मोलैरिटी सब चेंज हो रही है। सिमिलरली आई एम क्लिकिंग हियर द पैरामीटर, क्योंकि इसमें क्लोराइड आए इसमें, तो यहाँ क्लोराइड आ गया, है ना। यहाँ पर राइट साइड जो है सोल्यूशन जहाँ इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन साइड। Similarly, here I am clicking, so this is acetic acid, so I'll get all these things, है ना। Why H plus O? क्योंकि हम aqueous solution की बात करते हैं, तो OH is always there, okay? क्योंकि acid pH और हम उसको aqueous solution state में measure करते हैं, okay? So this is the demonstration of the experiment, that is the effect of common ion on the pH of the weak acid and the weak base through virtual lab interface. Okay, so this is, अब different classes में हमारा ये सब demonstration होगा, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। वर्क बेंचेस हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, अपनी ढंग से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी कर सकते हैं, और हमारी वर्क बेंच साफ सुथरी होनी चाहिए, जैसे कि हम लेबोरेटरी में कहते हैं कीप योर बेंच क्लीन, जब भी जाओ तो साफ करके जाओ। सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन यू गो वी हैव टू रिमूव ऑल द थिंग, इफ वी कैन सेव इट ऑल्सो, है ना। हम इसको परफॉर्म करें, उसको सेव करके रख सकते हैं। अगली बार हम दूसरी वर्क बेंच पे वर्क बेंच पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, जैसे यहाँ पर न्यू वर्क बेंच, आई कैन ऐड अनदर वर्क बेंच, राइट। दिस इज माय प्रीवियस वर्क बेंच, दिस इज माय दैट द फर्स्ट वन वर्क बेंच जिसमें मैंने डाइल्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ये मैं सेकेंड है, और ये दिस इज माय न्यू वर्क बेंच। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the pH। ये PDF को हम शेयर करेंगे, और the related video will also be shared with you, or as soon as it was informed by me that we will open the group, you will practice it, you will go through the PDF, और जिसने अगर इंस्टॉल कर लिया है या डाउनलोड कर लिया है तो आप इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे, राइट। लास्ट ईयर हमने जब कराया तो स्टूडेंट्स ने अलग अलग ढंग से इसको परफॉर्म करते थे, डिफरेंट डाइल्यूशन लेके, क्योंकि there are hundreds, there are many list of chemicals, that is acids, bases and salts on the workbench, on the stock room of the interface. Okay, so that's all for today. Someone थोड़ा सा इन लोगों से इंटरेक्शन कर लिया क्या?